Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, students, I am going to discuss exercise of fire, friend and foe. First word meaning. Number 1, smoldering, burning slowly without flame. Smoldering means it burning but very slowly. बहुत धीरे धीरे से आग जल रही है, उसे हम कहते हैं स्मोल्डरिंग. देन generate, produce. प्रोड्यूस मीन्स कुछ चीज़ का निर्माण करना, उसे बनाना. नंबर 3, एक्सटिंग्विश, पुट आउट, बुझाना. बैंड्स, ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, बैंड. नंबर 6, कोप, डील विद, मैनेज. देन नंबर 6, स्मोथर्ड, सफोकेटेड, सांस लेने में परेशानी. नंबर 7, इक्विपमेंट, थिंग्स नीडेड, कोई भी चीज़ काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है. नाउ मेक सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली द वर्ड्स, but you had to frame your own sentence. Now students, you are going to write down filling the blanks. Number 1, fire is a good servant but a dash. Answer is bad master. Number 2, small fires can be put or smothered with a dash or dash. Answer is blanket or sack. Number 3, firefighters are highly trained people to put off the fire at any place. Answer is firefighters. Number 4, carbon dioxide is the best extinguisher to put off an electric fire. Answer is carbon dioxide. Number 5, fire is in the form of dash and dash energy. Answer is heat and light. Now question answer. Answer the following questions. Number 1, what do you understand by the flash point of a fuel? Answer, every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called flash point or kindling temperature of the fuel. Now what is a flash point? Everything that is needed to burn need a particular time. That particular time is known as a flash point. कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें कुछ फिक्स टेम्परेचर चाहिए, तो उस फिक्स टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट. नंबर 2, what are some common uses of fire? Some common uses of fire are to cook our food. Number 2, to generate electricity. Number 3, to warm our house in winter. आग हमारे 3 कामों के लिए आती है. सबसे पहला है हम खाना बनाते हैं इसके ऊपर. दूसरा है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे. और तीसरा है हम जब बहुत ठंड होती है तो अपने आसपास लकड़ी को जलाकर वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म कर लेते हैं. नंबर 3, in what sense is it a bad sense? When fire gets out of control, it can be very dangerous as every year thousands of houses and shops are damaged by fire. Vast areas of forests are destroyed and hundreds of people are killed or injured. In this sense, it is a bad master. अब देखो, हर साल दिवाली के बाद
या तो गर्मी के सीज़न में हजारों ही लोगों की जानें जाती हैं और कुछ घर, दुकानें और जंगल भी आग की चपेट में आ जाते हैं। इससे हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? When we blow on a burning candle, it goes out because blowing removes the hot air around the flame, bringing down its temperature below flash point. अब बच्चों, जब हम बर्निंग कैंडल पे अपने मुंह से हवा फेंकते हैं तो वो बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? क्योंकि हमारे जो मुंह से हम हवा गर्म निकालते हैं, कैंडल के ऊपर डालते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इससे हमारी कैंडल बुझ जाती है। नंबर 5, स्प्रिंग वाटर इज नॉट अ वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिक फायर। वाई? स्प्रिंग वाटर इज नॉट good to put off oil fire or electric fire because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spread the fire in vast area. The person spraying water may receive an electric shock and can be die. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electric fire. बच्चों, हमें कभी भी अगर किसी भी तेल से आग लगती है तो उसके ऊपर हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी हमेशा तेल पानी के ऊपर ही रहता है। और जैसे ही हम अगर पानी तेल वाली आग के ऊपर छिड़केंगे तो जितनी जगह पानी पहुंचेगा उतनी ही जगह पे आग और लग जाएगी और इससे हमें भारी नुकसान होगा। तो कभी भी अगर बच्चों पानी तेल से आग लगती है तो आप मिट्टी की बाल्टियाँ डालो या तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करो। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से भी अगर आग लगती है तो भी आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और अगर इलेक्ट्रिक करंट अपने तक पहुंच जाता है तो हम उस इलेक्ट्रिक शॉक से हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आग तेल से लगती है या इलेक्ट्रिक करंट से लगती है तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे बच्चों हमारा लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखकर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। थैंक यू।